Welcome back to my YouTube channel. Today we will see the topic from the chapter Tissues, class 9th NCERT. So today the topic that we will discuss, that is complex permanent tissues. Okay, so complex permanent tissues, actually this complex permanent tissue is one of the type of permanent tissue. So permanent tissues are basically divided into two types. The first is a simple permanent tissues that we have seen in the previous lecture. If you have not seen that lecture, please go and just see that lecture. Then the second type is a complex permanent tissue. So first of all, we should know the definition of the permanent tissue. So permanent tissues are that tissues which have the definite shape, a proper shape, which are performing some specific function. ठीक है, which are not dividing, जो dividing नहीं है, which are not dividing at all, which are non-dividing cells. Okay, so permanent tissues are also known as non-dividing cells. Then these are categorized into two types. The first is simple. Simple means the tissues which are made by only same type, only one type of cells, called simple permanent tissues. And the second type that we will see today, that is complex. So complex permanent tissues are the tissues that are made up of more than one type of cells. मतलब कि ये जो complex permanent tissues हैं, ये एक से ज़्यादा cells से मिलके बना है, but the others, जो cells हैं, वो सभी cells के structures अलग है. All the cells are not similar. All the cells are dissimilar. सभी एक समान नहीं है, अलग अलग टाइप की सेल से मिलके बना है. That's why this is called complex. Complex मतलब बहुत complicated टाइप का है ये. ठीक है, इसको अगर हम देखें तो the complex permanent tissues are again of two types. The first is a xylem and the second is a phloem. And these xylem and phloem, these are known as complex tissues as well as the conducting tissues. Conducting मतलब conduct कर रहे हैं, which are transporting something. So what they are transporting, what they are conducting, so they are transporting, both the tissues are transporting water and minerals and food. So the first one is the xylem tissue, xylem complex tissue. So xylem is the complex tissue that transports water and minerals from the soil to the upside of the plant parts. कहने का मतलब ये जो xylem tissues होती हैं, actually these are tube-like structure. ये कैसी होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है. इस ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स होती है, पूरे प्लांट में स्प्रेड रहती है, फैली हुई रहती है. और ये क्या करती हैं? रूट से नीचे से, रूट से, क्योंकि वाटर जो होता है दैट इज एब्जॉर्ब मेनली फ्रॉम द रूट्स. ठीक है, तो रूट से वाटर पूरे ऊपर वाले पार्ट्स में प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, वाटर एंड मिनरल्स को. कैसी होती है हम देखते हैं बाय द डायग्राम. ये रूट्स हैं, रूट्स में हेयर्स होते हैं. ये हेयर्स क्या करते हैं, जिन्हें हम रूट हेयर्स बोलते हैं. दीज रूट हेयर्स एब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड वी नो द वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल. तो ये वो एब्सॉर्ब करेंगे रूट हेयर्स वाटर को, और ये ट्यूब्यूलस लाइक स्ट्रक्चर से पूरे ट्री में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर होता है. बट अगर हम फ्लोएम को देखें तो फ्लोएम कंडक्ट्स रेडीमेड फूड मटेरियल. तो जो भी फूड अगर ऊपर लीव्स में, क्योंकि फूड कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है, ग्रीन पार्ट्स में बनता है. तो रूट्स में तो खाना बनेगा नहीं, बिकॉज दे आर नॉन ग्रीन, वो बिना ग्रीन कलर की होती है. ठीक है, वो ब्राउन होती है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. तो दिस पार्ट, द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द अपर पार्ट. ऊपर के पार्ट पे डिपेंडेंट होता है खाने के लिए, फॉर फूड. सो ऊपर से भी ऐसे फाइन, आई एम इंडिकेटिंग विद द ब्लू कलर, फ्लोएम को इंडिकेट कर रही हूँ. तो ऊपर जहाँ पे खाना बन रहा है वहां से नीचे ट्रांसपोर्ट करना उन पार्ट्स में जहाँ पे खाना नहीं बन रहा है, ये काम है आपका फ्लोएम का. ठीक है, सो xylem conducts water and minerals from root to upper part. ये बेसिकली नीचे से ऊपर ही जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हम पानी जड़ों में डालते हैं. ऊपर एब्जॉर्प्शन का काम ही नहीं. पेड़ के ऊपर अगर हम पानी डालेंगे या प्लांट की पत्तियों पे पानी डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा. ठीक है. सेकेंड, फ्लोएम कंडक्ट्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द ग्रीन पार्ट्स टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स. ग्रीन पार्ट इसलिए क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में ही खाना बनता है और नॉन ग्रीन में नहीं बनेगा. तो नॉन ग्रीन पार्ट जो है वो काम कर रहे हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए तो खाना चाहिए. तो खाना कहाँ से लेंगे? वो ग्रीन पार्ट से लेंगे. सेकेंड इज इन जाइलम में जो मूवमेंट है वाटर का वो एक ही डायरेक्शन में होता है. मतलब रूट से ऊपर होगा, ऊपर से नीचे नहीं होगा, रूट से ऊपर होगा, इसलिए यूनी डायरेक्शनल बोला है. यूनी मतलब वन, डायरेक्शन मीन्स दिशा, डायरेक्शन.
सो मूवमेंट कहाँ पे होगा, एक सिंगल डायरेक्शन में होगा, इसलिए दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल. सो इन फ्लोएम द मूवमेंट ऑफ द फूड, रेडीमेड फूड, इट हैपेंस इन बाई डायरेक्शनल. ये कहाँ होता है, बाई डायरेक्शन. बाई मीन्स टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में. दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, या तो नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे होगा. सो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दे रही हूँ कि वो दोनों डायरेक्शन में कैसे होगा. नीचे से ऊपर कहने का मतलब ये नहीं कि रूट से ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे खाना बन गया है, ठीक है, यहाँ पे लीफ सेल ने खाना बनाया है और यहाँ पे डिमांड है फूड की, तो ये यहाँ ऐसे चला जाएगा, फूड ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम के थ्रू. अगर फूड यहाँ पे बना है ज्यादा अमाउंट में तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा. तो आप देखोगे तो ऊपर से नीचे भी खाना जा रहा है, क्योंकि हमेशा ऐसा तो है नहीं ना कि पत्तियां जो ऊपर है उनमें ही खाना बने, जो नीचे है उनमें भी खाना बनेगा. तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ऊपर से नीचे भी जा सकता है, नीचे से ऊपर भी फूड का ट्रांसपोर्ट हो सकता है. वाटर के केस में ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर ही जाएगा. दैट्स व्हाई द मूवमेंट, द ट्रांसफर ऑफ फूड in phloem is bidirectional. This is very important point. Third is the xylem consists of 4 type of cell. देखो xylem जो है इसे हमने कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में रखा है, ठीक है, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में रखा है. तो कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में हमने क्यों रखा है, क्योंकि ये 4 अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बना है, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. सो देखते हैं कितने टाइप की सेल्स हैं. सो 4 टाइप की सेल्स होती है. फर्स्ट इज अ xylem trachea, second is a xylem vessel, third is a xylem parenchyma and the fourth is a xylem sclerenchyma. तो xylem trachea का फंक्शन क्या है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. ये एंड्स है, ऐसे नैरो एंड्स है, इसलिए इसको टेपरिंग एंड्स बोला जाता है. टेपरिंग, ये टेपरिंग हो रहा है, मतलब पहले मोटे थे अब कम होते जा रहे हैं, ठीक है. तो नैरो हो गए, सक्रिय हो गए, इसलिए सक्रा मीन्स टेपरिंग. और लॉन्ग है, लंबी सेल है, तो लॉन्ग है और टेपरिंग है, इसका ये स्ट्रक्चर है. फिर आपको यहाँ पे छोटे छोटे पिट्स देखने को मिलेंगे. पिट्स मतलब कि पोर्स, ताकि अगर वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो अगर उन सपोज ये बहुत सारी ट्रैकीट है, ठीक है, तो एक इन सभी ट्रैकीट्स में होल्स हैं, तो वाटर अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो वो साइड में भी ट्रांसपोर्ट हो, यहाँ से इसमें भी चला जाए, यहाँ से इसमें चला जाए, और भी जो पूरी ट्यूब से सभी में साइड वे कंडक्शन भी हो जाए वाटर का, इसलिए इसमें पिट्स अवेलेबल होते हैं, पोर्स अवेलेबल होते हैं. सेकेंड इज जाइलम वेसल्स. जाइलम वेसल्स जो है ये ऐसे अरेंज रहती है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, एग्जैक्टली इसी के जैसे स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो, ठीक है. तो ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें भी पिट्स होंगे और सेम है, इनमें पिट्स भी, इनमें होल्स हैं, इसमें पोर्स है ताकि साइड वे कंडक्शन हो सके. नेक्स्ट इज जाइलम पेरेन्काइमा. सो जाइलम पेरेन्काइमा का सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि दिस इज द लिविंग सेल. ये क्या है, ये क्या है, लिविंग सेल है. अगर हम बाकी सेल्स को देखेंगे तो ये डेड है, दिस इज ऑल्सो डेड एंड द लास्ट स्क्लेरेन्काइमा भी डेड है. बट इन चारों में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन जाइलम इज लिविंग. सो आपको पता होना चाहिए पैरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है. तो जाइलम पेरेन्काइमा का क्या काम है, इट स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर. ये भी क्या करता है, अपने लिए फूड को स्टोर करके रखेगा एनर्जी के लिए, इन फ्यूचर अगर जरूरत हुई इसे फूड अपने अंदर स्टोर करके रखेगा. और दूसरा क्या करता है, साइड वे कंडक्शन भी करता है, ठीक है. तो ये इसका स्ट्रक्चर है आपका पेरेन्काइमा का, इसमें भी पिट्स होंगे. तो बेसिकली इन सबका काम क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना ही इनका रोल होता है. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस इज लिविंग. द लास्ट इज जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. सो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ये फाइबर्स होते हैं, प्रोटीनियस फाइबर्स, ये भी डेड है, ठीक है. और ये क्या करता है, फाइबर्स है तो ऑब्वियसली इट विल प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ये जाइलम टिश्यूज को. अब फ्लोएम में भी अगेन फ्लोएम इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, मतलब ये भी अलग अलग टाइप की सेल से बना होगा. तो इसमें भी 4 टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलेंगी. फर्स्ट इज अ फ्लोएम सीड सेल्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स, थर्ड इज फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड द लास्ट इज फ्लोएम फाइबर्स, और इन्हें ब्लास्ट फाइबर्स भी बोला जाता है. अब जैसे इन चारों में एक लिविंग थी, तो इन चारों में 3 लिविंग है, 1 डेड है.
ठीक है। तो आप एक डेड वाली याद रखो, डेड एक कौन सी, फाइबर वाली हमेशा डेड रहेगी, ठीक है, सिर्फ डेड है, बाकी के ऊपर सीव, कंपेनियन, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये तीनों लिविंग है, ठीक है, इसको छोड़ के। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लोएम जो टिश्यूज हैं उनमें जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स होती है उसमें सबसे डेड वाला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लास्ट फाइबर्स या फिर फ्लोएम फाइबर। फर्स्ट है सीव सेल। आप इस पिक्चर को देखो, आपको चारों टाइप की स्ट्रक्चर्स पता चल जाएंगे, चारों के स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप देखो तो सीव सेल्स और सीव ट्यूब है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहा है लॉन्ग ट्यूब, इनके बीच में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इस प्लेट्स में भी पोर्स हैं ताकि जब फूड ऊपर से नीचे फूड आ रहा है, ठीक है, तो ये पिट्स के थ्रू होके निकल के चला जाएगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये आपका क्या है, ये सीव ट्यूब है ये वाला, ये सीव प्लेट है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में होल्स होते हैं, तो फूड इन पोर्स के थ्रू ही ऊपर या नीचे जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे फाइबर्स दिख रहे हैं, ये फाइबर्स, ये फ्लोएम फाइबर्स हैं जो क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि डेड भी है। उसके बाद कंपेनियन सेल्स, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये वाला, दिस इज कंपेनियन सेल्स हैं। अब ये कंपेनियन सेल्स का काम क्या है, तो डिसाइड करते हैं कि फूड कहाँ पे जाना है, फूड को जाना कहाँ पे, तो डायरेक्शन जो है फूड का वो डिसाइड किया जाता है बाय द कंपेनियन सेल्स, कि फूड की ज़रूरत किस एरिया में है, जिस एरिया में फूड की ज़रूरत है उस एरिया में फूड को जाने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट आप देखो जो लास्ट वाली आपको दिख रही है, ये दीज आर पैरेन्काइमा सेल्स, ये लास्ट वाली है जस्ट कंपेनियन की साइड वाली। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो भी लिविंग है, और ये क्या करती है, ये एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करती है। अब ये जब खाना बहुत ज़्यादा है, उनको ज़रूरत नहीं है फूड की, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो क्या करेंगी, फूड को स्टोर करने का काम करेगी, कौन, पैरेन्काइमा। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों में पैरेन्काइमा होती है, दोनों का काम है स्टोरेज ऑफ फूड। तो दिस इज ऑल अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि ये स्टेम में जाइलम फ्लोएम लोकेटेड कहाँ होती है। सो एक स्टेम में जो फ्लोएम होती है वो बाहर के साइड लोकेटेड रहती है, और जो जाइलम है वो फ्लोएम के नेक्स्ट लोकेटेड रहती है, मतलब कि जो जाइलम है वो थोड़ा अंदर लोकेटेड रहती है और फ्लोएम बाहर के साइड लोकेटेड रहेंगी। तो रेड कलर जो रीजन है दिस इज फ्लोएम, और जो ब्लू कलर है वो जाइलम है। तो ये इसकी लोकेशन है स्टेम्स में।